Hi everyone, very good evening. This is Simran Kaur from HR team of Master Trust. So I welcome you again to the fresh episode of our exclusive webinar series Street Experts. Today we have an exciting session on opportunities in WTI crude oil contracts with our guest experts Mr. Gaurav Kapoor, Vice President, Regional Head DRO. We have Mr. Varun Agarwal, Managing Director from Profit Idea, and Mr. Vaibhav Sharma, a manager from NAC. We will have a Q&A session at the end of the presentation, and in case of any query, participant can write it down in the Q&A box or can raise their hand for the query. We will allow them to speak. So let's begin with the session. And for that, I would like to hand over the call to Mr. Gaurav Kapoor. Thank you. Thank you, team of Master Trust for organizing this event webinar. The focus for this webinar would be on the NSE commodity derivative segment. As you are aware, NSE has largely been focused on equity derivative, and as unified exchange process was being allowed by SEBI, so exchanges which were providing equity side of the business could start providing commodity also as an asset class as a separate segment. And that is how NSE also started its commodity journey. So presently, if I have to tell you, we have close to 27 products which we have got approval from SEBI. But understanding that this is a new area for us and we need to develop each product because commodity is a totally different product asset class, the way the behavior is there, and because there is physical assets which needs to be moved because many of the guidelines which SEBI has provided where a future necessarily in many of the cases in bullion as well as in base metal needs to be delivered. So there has to be an ecosystem which needs to be created for the delivery. So presently what we have done is we're focusing on the energy basket. So we have got approval for 6 contracts, which is the WTI crude oil futures, the natural gas futures. We have got mini contracts, both futures on them, both WTI as well as natural gas. Then we have got options approval, both on crude as well as on natural gas. But as I mentioned, these are the future is a cash settled contract. The options in this case gets devolved on future. So what happens is I'll tell you about the contract. So generally what happens is the options get expired 2 days prior and the devolvement would happen on the futures contract. So that is how the options on future contracts work. The other thing is the benefit of you trading with NSE, if I have to put is one, definitely NSE has been there in the ecosystem for such a long period. So Master Trust, your broker, I understand many of the clients, authorized persons, branches, everyone would be there onto this call. So you already know about NSE ecosystem processes. So we have a robust, safe, resilient technology platform, which is the need of the hour in the commodity derivative space. We have a collateral fungibility. तो उसका मतलब क्या है कि जैसे आज इक्विटी डेरिवेटिव की मार्केट 330 तक चलती है, तो सेम पैसा जो आप मार्जिन के लिए यूज दे रहे हो वो शाम को भी यूटिलाइज होता है. जो कमोडिटी मार्केट है आपको मालूम है मॉर्निंग 9 to 11:30 चलती है जो क्रूड की मार्केट है. So the same money can actually, if you can utilize after 3:30 and get your better return or whatever your strategy may be, whether it is an investment strategy, whether hedge strategy, or whichever way you want to do. But you have an options to actually trade commodities after 3:30 and generate returns on the same amount of money which you are putting for equity derivatives. So collateral fungibility, I think, is one of the biggest strength. The other thing is we have multi assets under our roof, which I have already mentioned to you, which is largely in terms of the bullion as well as the base metals. The other benefit which we clearly see is as SEBI has allowed FPI category 1 and 2 are permitted to trade and largely in the crude and the NG, the energy bullion space.
So NSE has a good ecosystem of FPI clients who would be very keen to trade crude and NG basket onto the exchange system. There are very economical charges which we have put because we want to promote this product. So we launched this product in October, the options on future on October 9th last year. And we've seen a very gradual and a very, I would say, a very satisfying, growth of participation from each and every members. So we've clocked some higher points in terms of number of contracts. We crossed 1 lakh contracts also at some point of time, which is basically it's a 100 barrel contract. So we've done almost 10 million barrels, if I have to say. But the other piece is what we are seeing is in last week to 10 days, a lot of participation has increased, and the expiry week, we're seeing people are trading as close to the ATM. So that is I think a very healthy sign for the market. The open interest is building up, and we would request with this webinar. I think Varun is also there. He'll be able to tell you what all possibly can be done with the NSE commodities screen. And I wish all the luck and thank you, Masters, for providing this, platform to us for, for people to know about the NSE commodity space. Last but not least, we've just to give you an idea, we've also launched the NSE Nifty Next 50 contract, which was being done last month. We had the expiry it's a monthly contract, so it gets expired on Friday. So that has also gained a good amount of traction, which is basically the next 50 is basically the next 50 companies based on market capitalization beyond the Nifty 50 companies. So these are companies from 51 to 100. So we've created an index which is the Nifty Next 50, which was earlier erstwhile called as Nifty Junior. So that is also seeing attraction. It's a monthly contract getting expired on a Friday. So the focus is on the commodity. I thought at least I'll update you on what new else is there on the equity side of the segment also. Thank you once again. Thank you, Gaurav sir, for the thought. Let's continue with the session. So I will be covering the NSE commodity, the presentation, the basic presentation that we have. Just to give you a background about NSE, it established in 1994 and it's the first demutualized stock exchange, and it is regulated by SEBI, and it is the first promoted India's first depository dematerialization of shares. And the most important part is NSE is the first exchange in India which established the electronic trading platform, which introduced it through the VSET connectivity, and also established the first clearing corporation. And in the current scenario, as you all know, NSE is the largest derivative exchange globally, and it ranked first consecutively for fifth year in a row by in terms of the trading volume by the Futures Industry Association, which maintained the statistics of the trading volumes across the globe. In equity segment, NSE is ranked third in the world by number of trades as per the statistics maintained by the World Federation of Exchange. Coming forward, why commodity derivative? So first and foremost important point is price risk management. As you all know, the risk is a very much important aspect when we look forward for in terms of the contracts trading on the exchange platform as well as on the underlying assets. So through hedging, the price risk management can be done, and it enables the hedger to mitigate the risk arising from the world of commodity markets and the focus on the core business activity. The second point is efficient price discovery, through which commodity derivatives serves as a vital role for price discovering, and the trading objectives also can be achieved through the different asset class, as we all know. And the most important is the price setting through the global commodity markets. Now, coming on the product structure of the commodity derivatives, the notified goods, there's a list of 104 agricultural base metals and precious metals and the commodities basically, and also the energy basket.
And the currently the derivative on commodity contracts which are allowed in India are traded in on the futures, as well as on the options on futures, options on goods, which we called at the options on the underlying, and the futures on the indices and options on the indices. And the type of settlements that we have are the futures that are compulsorily delivery or the cash settled. That depends on the type of contract. And second is the options, which are on the goods that we called it on the underlying and on the futures. And second is the indices, which we called it the cash settled. The commodity basket that NSE has, as also shared by the Gaurav sir, we have bullion, energy, and base metal baskets. In which in bullion we have gold, silver, they basically covering the 1 kg future, 1 kg options. Also, silver we have 30 kg futures and 30 kg options, and also the mini contracts of futures and options of both in gold and silver. And also the Guinea contract is also available in the gold and silver. We have micro futures. In terms of the energy basket, we have WTI crude, natural gas, and the WTI crude mini contracts, as well as natural gas mini contracts also, which covering futures and options both. And the most important is the futures are available on the the options are available on the futures. They are not on the goods. The other is the base metals, in which we are having the copper futures, the copper options, as well as the aluminum futures and the mini contracts also, the lead futures and lead mini futures, and nickel futures and zinc also. So this is the in terms of the commodity basket. And a little bit on the options on the future side. So if a contract is ITM, that is in the money, at the time of expiry, the positions are divided into the future position. So it's just an explanation of how the position will be converted. So if you have a long call position, it will be considered after the development, it will be considered as a long future. And if you have a long put position, it will be considered as short future. And if you have a short call, it will be divided into a short future, and short put option will be divided into a long future. The other background of the options on futures, if the expiry of the option contracts 2 days prior to the expiry of the respective future contract. So it's an important aspect, because the option contract expires before the future contract, that is T-2, you can say. And it is a European style options. The position limit for options would be separate from the position limit applicable on the future contract. And also the position limit or options shall be twice of the position limits of the futures. Now, what is the difference between an options on goods and an options on the future? So let's throw some light on the difference. So the underlying, the options on goods will be the underlying will be the goods, and on the futures, the underlying will be the futures. The symbol on options on goods will be OPT BLN. The BLN stands for the bullion. Symbol may vary depending on the commodity group. So whatever the commodity group is, the symbol will be the underlying of what it is. So option bullion will replicate about the gold or silver, and the options on futures will be OPT FUT. The final settlement price of the options on goods, pooled spot price of the underlying, and the options on futures is the daily settlement price of the underlying future contract. So here's the important aspect: the final settlement of the goods contract, the options on good contract, is the underlying price of that the pooled spot price, and on the options on the futures is the daily settlement price of the futures of the on the expiry day of the options contract. And in terms of the settlement on the expiry, on the underlying goods, sorry, on the options on goods, through physical delivery of the underlying commodity, and options on futures, it devolved into the future contracts. And on the options on the goods, the development margin is not applicable, while on options on futures, it is applicable from 2 days prior to the expiry of the contract. Now, the certain important aspects of the NSE crude oil options that we have. The NSE launched the option contract on the October 9, 2023 in the commodity derivative segment, and we have seen a significant boost in the energy basket of the exchange side. The contracts crossing significantly 10 million barrels across the period that we have till now. And the highest contracts traded is around 10 lakhs 27,650 barrels.
and we have a participation. We have seen a participation across the diverse categories, which includes the portfolio investors also. And we have seen a continuous growth in terms of the liquidity and depth across the option chain. And the most important aspect that Gaurav sir also highlighted is the fungibility across the NSE segments. Then the most important thing, we have reached the heights, and all thanks to all the market participants and the trading members. And we have achieved approximately 97% of the traded contracts in NSE crude oil options were in the ATM or near the ATM strikes. And it's a big achievement in terms of the new contract available on the exchange side. And if you compare, if you see the 6 month cycle, we have seen a vast liquidity boost in terms of the various strikes across the option chain, and crossing the 1 lakh contract mark milestone during this period. And the participation is across the wider scale. So this is the highlights of why NSE would be preferred in terms of the trading through for the commodity derivative, as it is the number one derivative exchange. It has a robust and resilient technology platform. And the most important part, it has a collateral fungibility across the NSE segments. So you get a significant advantage while you are trading the commodity market, because it gives an additional benefit when you are trading the NSE commodities. This is in terms of the NSE commodity part. Now over to Varun. Hi, good evening, everyone. I hope I am audible. And let me just very quickly share my screen and show like what we can do, how we can formulate these strategies. So just a second, please. Okay, so this is WTI crude, and I hope my screen is visible to you. Now, this is one of the vastly traded commodity as far as like if you talk about the commodities which are traded across the globe. So this is like one of the highest traded commodities, and with the NSE contracts, I think this gives you a wonderful opportunity wherein like you can have multiple benefits and you can form strategies. Plus, I think the margin benefit is significant if you form these strategies. And because the contracts are devolving as like Vaibhav sir has explained, so आपको यहाँ पे समझना क्या है कि आप जो strategies बना सकते हैं या like formation कर सकते हैं. I think those strategies can give you significant profits. Now as a trader, I think that's a very good opportunity. मैं आपको एक छोटा सा example लेता हूँ, and I hope like all of you are comfortable with the mix of Hindi and English. So what we'll do, we'll take a simple example कि कैसे आप सिंपल 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप बेनिफिट ले सकते हैं. आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर से डिफाइन करके स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, एंड दोनों ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर आप कॉम्बिनेशन. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टूल, आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग अ सिंपल टूल विच इज क्यू अल्फा. एक बहुत बेसिक मैंने टूल यूज किया. नाउ मे बी लाइक कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हम लोग ये चार्ट कैसे ओपन करते हैं या कैसे लाइक इसको बनाएंगे. सो मैं जस्ट फॉर दी बिगनर्स मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेडिंग व्यू पे गया, tradingview.com खोल लिया. आप कोई सी भी वेबसाइट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स में जाके मैंने यहाँ पे सुपर चार्ट्स लगा दिया. द मोमेंट लाइक आई पुल अप दी चार्ट, यहाँ पे आपके पास ऊपर चार्ट की विंडो आती है. तो मैंने यहाँ पे टाइप क्या किया, यूएस ऑयल टाइप कर दिया, WTI क्रूड. WTI क्रूड को मैंने जब सेलेक्ट करूंगा और मैं लगाऊंगा तो मेरे पास इस तरीके से ये चार्ट ओपन हो जाएगा. नाउ हम लोग बात कर रहे हैं, हमें सपोज ट्रेडिंग करनी है और इसके ऊपर छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है. तो अभी देखिए मैंने 15 मिनट का एक चार्ट लगाया है. यहाँ पे मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ क्यू अल्फा. इससे बस मुझे ये फायदा हो रहा है कि आप कोई सा भी टूल लगा सकते हैं, RSI हो गया, MACD हो गया. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं दिखा देता हूँ आपको. इंडिकेटर्स में गया और इंडिकेटर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक क्यू अल्फा का टूल आ रहा है. मैंने ये क्यू अल्फा का टूल लगा के आप लगा सकते हैं इंडिकेटर्स में. ये मैंने यहाँ पे डाल दिया. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रुक क्या होगा, वेयर लाइक प्रोबेबली द क्रूड ऑयल कैन मूव. सो अगर आप देखेंगे ये एक छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा लाइक बड़ा कर रहा हूँ. ये अभी रिसेंट बाय आया था विच वाज एट 78.40. वहां से हमें दिख रहा है एक अच्छी चाल क्रूड ऑयल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है. मैं इस चीज को आपको समझाने के लिए NSE की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ कि कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं या कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं. तो जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं NSEindia.com, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आती है, लिखा आता है ऑप्शन चेन. तो देखिए आप जब भी NSE की वेबसाइट खोलेंगे पहली बार, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी ऑप्शन चेन की. तो हमारे पास ऑप्शन चेन के अंदर इक्विटी स्टॉक आता है, करेंसी आता है, ऐसी कमोडिटीज आता है. आपको कमोडिटीज के ऊपर क्लिक करना है, एंड कमोडिटीज के अंदर आज NSE के ऊपर मल्टीपल कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं.
सो बी इट कॉपर, जिंक, गोल्ड मिनी, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर मिनी, ऐसे ही WTI क्रूड आ रहा है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं WTI क्रूड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं 14 जून की एक्सपायरी आ रही है। सो जो अभी का कॉन्ट्रैक्ट है, इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परसों एक्सपायर होने जा रहा है। नाउ आपको पता है कि जो इनकी ऑप्शंस हैं वो डिवॉल्विंग इन नेचर है। कहने का मतलब क्या है कि दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर ऑटोमेटिकली। सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर मैंने सपोज ले लिया तो मुझे फिजिकल डिलीवरी लेनी ही लेनी है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिवॉल्व हो जाएगी और फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फ्यूचर की एक्सपायरी 18 तारीख की है। सो अब हमें ये समझ में आता है कि एक सपोज हमने सिग्नल को ट्रैक किया, चार्ट देखा। सो एज पर दी चार्ट देर इज अ बाय सिग्नल। नाउ हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, सिंपल बाय या सेल, कोई भी सिग्नल आ रहा है आप उसके ऊपर जो भी अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना चाहते हो, तो आप रिस्क डिफाइन करके अच्छी स्ट्रैटेजीज पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे गया NSE की इस चेन के ऊपर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सो अभी फिलहाल जो रेट आ रहा है, क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा है वो लगभग 6500 चल रहा है, विच मीन्स जो एक बैरल का रेट है दैट इज 6505। सो दैट इज द करंट रेट जो कि अभी हम देख लाइव, जो अभी अभी करंट मार्केट के अंदर आ रहा है। नाउ इस रेट के हिसाब से मैंने देखा कि अभी फिलहाल NSE की वेबसाइट के ऊपर ये 6500 की मेरे पास एक कॉल आ रही है, और साथ में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 6500 की जो पुट आ रही है वो 36 रुपए की है। कॉल का रेट 123 रुपए का है। और आप देखिए कि लाइक सफिशिएंट लिक्विडिटी बायर खड़ा हुआ है, और 124 रुपए 40 पैसे पे आपको देखा। मैंने एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया एंड लेट्स से सपोज हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 124 रुपए पे या 125 रुपए के करीब में खरीदना चाहते हैं। तो मैंने जैसे जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन चेन पे देखा, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो 6500 की कॉल है, दिस इज लाइक जो मेरा कॉल प्राइस है, तो आप देखेंगे 123 रुपए 50 पैसे, 124 रुपए 10 पैसे, और अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। 266 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी लाइक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग हो रही है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं हार्डली लाइक 50-60 पैसे का स्प्रेड चल रहा है इसके अंदर। सो इट्स अ डिसेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए मैंने इसको 124 रुपए पे हम सोचते हैं कि हमें बाय करना है, वी हैव आउटलुक की यहाँ पे सपोज यहाँ से सपोज क्रूड ऑयल ऊपर चलता है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगेन, लाइक जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने क्या किया, एक टूल का हेल्प ले लिया। नाउ दिस कैन बी एनी टेक्निकल टूल। सो मैंने देखा कि ये यहाँ पे बाय सिग्नल आया, इस बाय सिग्नल के ऊपर मेरे को एक स्प्रेड बनानी थी। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेड बना के, और क्योंकि एक्सपायरी अभी 2 दिन बाद ही है, तो आप रेशियो बना के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको डाइल्यूशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा और डायरेक्शनल बेनिफिट भी मिलेगा। तो कैसे आप काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि आपने 6500 का कॉल, 124 रुपए 123 रुपए 50 पैसे में बाय होता है। वहीं 6600 का जो कॉल है, अगेन देखिए लिक्विडिटी सफिशिएंट है। मैं इसलिए ऐसा आपको कह पा रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ सिंपल लाइक, मैंने ये ओपन कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ओपन कर रहा हूँ, तो आपको 6600 का कॉल दिख जाएगा। सो ये मैंने क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पे, दिस इज अ WTI क्रूड के ऊपर यहाँ पे 6600 का कॉल लगा लिया। अगेन आप देखेंगे 62 रुपीज 20 पैसा एंड 62 रुपीज 40 पैसा। सो देर इज नो लिक्विडिटी कंसर्न एज सच, नहीं आएगी। अगर आप सपोज इसमें यहाँ पे ऑप्शंस में काम करेंगे तो आप इजीली अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। प्लस 3:30 बजे एज अ ट्रेडर, 3:30 बजे हमारा मार्जिन फ्री हो गया है। हमें पता है कि 3:30 के बाद हमारे हम मार्जिन का बेनिफिट ले सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आपने यहाँ पे इन ऑप्शंस को अगर आप राइट करते हैं, तो आपने एक लॉट इसका बेच दिया 62 रुपए 20 पैसे पे, आप देखिए बायर खड़ा है, तो 62.20 यू कैन सेल। एक लॉट के बदले में आपने एक लॉट सेल कर दिया। अब इसके साथ साथ आपने क्या किया, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे इवन 6700 का कॉल। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल। उसमें भी लिक्विडिटी, डिसेंट लिक्विडिटी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी खोल लिया है। उसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड लेट मी वेरी क्विकली शो यू कि हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि मोटा मोटा ट्रेड आ रहा है अपने पास। तो ये देखिए ये 6700 का कॉल ऑप्शन है, लगभग 25 रुपए के करीब। बायर खड़ा है 25 रुपए पे, सेलर खड़ा है 25 रुपए 20 पैसे पे। नाउ अगेन अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से आपने एक रेशियो बनाया, सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आपको। रेशियो कैसे बनाया, हमने ये 124 रुपए पे खरीद ली। सो मेरा जो नेट डेबिट है वो 106, पता है कुछ भी हो जाए 124 रुपए का मैं मैक्सिमम प्रीमियम दे रहा हूँ। नाउ सेकेंडली, अपने आप को मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, एक ये वाला ऑप्शन बेच दिया विच इज लाइक समवेयर अराउंड 62 रुपीज 20 पैसा, 62 रुपीज 40 पैसा के बीच में ये घूम रहा है। तो मैंने 62 रुपीज 20 पैसा में ये ऑप्शन को सेल कर दिया। सो 124 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 62 रुपीज में सेल कर दी, एंड ये जो ऑप्शन आ रही है 25 रुपए में, मैंने 25 रुपए को इस ऑप्शन को भी
सेल कर दिया। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज मेरे को यहाँ पे ये हो रहा है कि जो अगर आप अपना डेबिट देखेंगे, सो स्ट्रैटेजिकली लेट्स से सपोज आप एक ट्रेडर हैं, आपको समझ में आता है कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी का डेबिट कितना आया, तो आपने टोटल प्रीमियम जो एक तरीके से लिया, और जो आपने प्रीमियम दिया तो 124 रुपीज आपने डेबिट किया, 62 रुपीज का प्रीमियम आपको क्रेडिट हुआ, और 25 रुपीज का प्रीमियम भी आपको क्रेडिट हुआ। 37 पॉइंट्स का टोटल आप आप अगर अपने टोटल रिस्क की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, दैट इज 37 पॉइंट्स। नाउ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिंपल सिंपल इंडिकेटर्स। मैंने यहाँ पे देखा क्रूड ऑयल पे बाय आया और ये अच्छा डिसेंट मूव है। वाई डिसेंट मूव? बिकॉज जब भी आप सिंपल ट्रेड्स करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मूव आया है, दिस मूव इज 0.79%। नाउ एज अ ट्रेडर आप इन मूव्स के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बिकॉज होगा क्या, जो आपकी पास की जो आप एट दी मनी कॉल खरीद रहे हैं वो बढ़ जाएगी, वो आपको बेनिफिट देके जाएगी। और जो आपकी दूर की कॉलें हैं, क्योंकि अब एक्सपायरी 2 दिन बाद ही है, तो एक्सपायरी है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रीमियम आपका तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत बेटर हो जाता है। हम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड में प्ले कर सकते हैं इन सिंपल स्ट्रैटेजीज के अंदर। नाउ जो आप रेशियोज लाइक आज इंडेक्स के ट्रेडर्स है, निफ्टी पे लगाते हैं, बैंक निफ्टी पे लगाते हैं, या फिर लाइक मिड कैप निफ्टी पे लगा रहे हैं, नेक्स्ट 50 पे लगा रहे हैं, वो सेम चीज आज आप अपने मार्जिन को आफ्टर 330, बिकॉज आपका मार्जिन फ्री है और अब तो डेली एक्सपायरी है, सो उससे क्या फायदा होता है कि 330 के बाद आप ये स्ट्रैटेजीज को यूज करके अगेन यहाँ पे इंट्राडे मार्जिन चूज कर सकते हैं शाम तक, और आप अपने मार्जिन को बेटर यूटिलाइज करके अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी गार्नर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप एक और चीज जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं और जो कि काफी लाइक इन टर्म्स ऑफ आपके फेवर में आप प्ले कर सकते हैं, दैट इज लाइक क्या है कि आपको आज मार्जिन बेनिफिट मिलते हैं एक्सचेंज के ऊपर। सो वन ऑफ द वेरी कॉमन सिंपल स्ट्रैटेजी जो आप मार्जिन बेनिफिट का ले सकते हैं, दैट सिंपल स्ट्रैटेजी इज कि कैसे आप एक सिस्टम सिंपल के हिसाब से आपने फ्यूचर खरीद लिया। सो जस्ट फॉर दी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यहाँ पे स्टॉक को आप इग्नोर कर दीजिए, आपने क्या किया, क्रूड ऑयल का WTI क्रूड का फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर को आप प्लस करिए और एट दी मनी पुट प्लस कर लीजिए। तो देखिए मैं वापसी जा रहा हूँ NSE की वेबसाइट पे, हमें फ्यूचर प्लस करना है और पुट प्लस करनी है। अब बिकॉज एक्सपायरी नियर है ना, तो आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे ऐसा हो सकता है। सो लेट्स सपोज व्हेन आई गो बैक हियर, तो आप देखेंगे 6500 का पुट हार्डली 36 रुपीज का आ रहा है। सो जो आपका रिस्क है वो बहुत ही कम है, बिकॉज आपको पता है 36 पॉइंट्स का ही रिस्क है मेरा। आप सपोज क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता चला गया, ऊपर की तरफ क्रूड ऑयल चल रहा है, आपने 6500 के करीब क्रूड ऑयल प्लस किया, और क्रूड ऑयल जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और आप सिग्नल के हिसाब से ये सिग्नल यूज कर रहा है, या मैंने यहाँ पे सिंपल बहुत बेसिक आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट्स से एक और सिग्नल ले लिया, दैट इज लाइक मैंने यहाँ पे एक सिग्नल और लगाया, आपको आप लोगों को समझा सो दैट पॉसिबली आप लोग थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ भी पाएं और बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सिग्नल हटा दिया, इस सिग्नल पे काम किया, देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल पे बाय आया, ये बाय है, और ये बाय बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलता नजर आ रहा है। सो जो भी आपको लगता है कि यस मैं इन सिग्नल्स के बेसिस पे काम करना चाहता हूँ, या आप अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई दी स्ट्रैटेजीज विच विल गिव यू वेरी गुड बेनिफिट। और आप इंट्राडे कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं। एक और चीज, कई लोगों को ये पसंद होता है कि मेरे को ना पोजिशनल ट्रेड करना है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड किया, तो देखिए 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, कितना बेहतरीन ट्रेड है। अगर आपने सपोज क्रूड ऑयल पे ट्रेड लिया होता, सो दिस इज अ सिंपल ट्रेड, सो इट केम समवेयर एट 73। नाउ लेट मी शो यू कि अगर आप ये ट्रेड जो कि इस तरीके से ट्रेड्स आ रहे हैं सिंपल, आपने क्या किया, इन ट्रेड्स को जनरेट किया, और मैं अभी करंट के लेवल पे आ गया। सो दिस इज गुड, 8.5%, लगभग 8.25% के करीब 8.24% का गेन आपको मिलता। नाउ 8.5% ऑन क्रूड ऑयल, दैट्स अ मैसिव गेन। अगर आप सपोज कच्चे तेल के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल जो कि लगभग मोटा मोटा 6500 के करीब चल रहा है, अगर आप उसके ऊपर ये गेन लेते हैं, सो आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या है, 500 पॉइंट का जो गेन है वो सिग्निफिकेंट गेन है जब कच्चे तेल पे आप काम करते हैं। तो आपने बहुत ही कम रिस्क, डिफाइंड रिस्क लेके, आपका रिस्क हार्डली लाइक कितना था, 30-40 पॉइंट्स का था। 30-40 पॉइंट्स का, क्योंकि वो ऑप्शन जीरो तो अभी नहीं होगी, जीरो तो परसों ही होगी। तो आपने कम रिस्क लेके बड़े ट्रेंड को, बड़ी रैली को प्ले आउट, पता है कि कैसे आप कम से कम रिस्क के अंदर मिनिमम लाइक इन टर्म्स ऑफ रिस्क के साथ आप बड़ा मूव प्ले कर सकते हैं। एंड एज अ ट्रेडर इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। नाउ एक और चीज, जैसे कई लोग लाइक दे हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ कैसे आप फॉलो करते हैं। अब सपोज मैंने एक सिंपल इंडिकेटर और लगा लिया जो कि काफी लोग यूज करते हैं, स्टोचेस्टिक। तो मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पे स्टोचेस्टिक प्लॉट कर रहा हूँ, वेरी बेसिक सिंपल, मार्केट के अंदर बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, 1 घंटे का
चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन इवन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द ट्रेड्स। सो इसमें क्या खासियत है कि जब भी ये बॉटम से नीचे से भागेगा, सो वेन एवर इट विल कम टू दी बॉटम अराउंड 10, और जब भी स्टॉक्स नीचे से रिवर्सल देगा, तो आप सपोज आपने ये सिग्नल यूज किया, यहाँ पे आपने बाय किया, सो अगेन इफ यू वुड हैव बॉट हियर, अगेन you would have got a decent move on the chart. So practically as a trader, this gives you lot of benefit, lot of leeway कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। सिमिलरली को स्कैल्पिंग पसंद है या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पसंद है, तो आपने क्या किया, अगर आप सपोज एक स्कैल्पर भी थे, तो देखिए ये वाले जो ट्रेड्स है ना स्टॉक्स के अंदर, वो इग्नोर करने होते हैं। स्टोचेस्टिक्स के अंदर मैं पीछे गया, जो भी ट्रेड नीचे गया होगा 10 के करीब गया होगा, देखिए सो समवेयर हियर, ये जो ट्रेड है स्टोचेस्टिकली, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेड गया था हमारा 10 के आसपास नीचे। जब वो नीचे से रिवर्सल देगा, यहाँ पे आपको बाय करना है। अगेन इफ यू वुड हैव बॉट हियर, यहाँ पे आपने क्रूड ऑयल के अंदर एक पोजीशन बनाई होती कि आपने एनएससी के ऊपर जाके एक फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर के हेज करने के लिए यू बॉट एट दी मनी पुट, और बिकॉज आपको पता है कि एक्सपायरी इसकी नियर बाय है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और चीज जो कि काफी सारे लाइक ट्रेडर्स और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे आप काम कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप सपोज एज अ ट्रेडर काम करते हैं। वो क्या बेनिफिट है कि यू कैन फॉर्म अ कॉलर ऑन लाइक क्रूड ऑयल। तो मैं आपको कॉलर का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल लाइक सिंपल से एग्जांपल दिखा रहा हूँ, विच विल गिव यू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप फ्यूचर खरीद रहे थे, फ्यूचर खरीदने के साथ साथ यू वर बाइंग पुट, तो उससे आप प्रोटेक्ट हो रहे थे। अब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है लाइक यू विल थिंक कि वो जो 36 रुपीज का या 40 रुपीज का मुझे डेबिट, वाई शुड आई इवन बेयर दैट कॉस्ट। सो आपको लगता है कि आपको वो कॉस्ट बेयर नहीं करनी, तो आप क्या करिए, एक दूर की कॉल, सो एक फार ऑफ कॉल अगर आप बेच देंगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो डेबिट था ना, वो क्या या वो क्रेडिट में बदल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी क्रूड ऑयल के ऊपर आपने फ्यूचर खरीदा सपोज 6500 पे, आपने साथ में एक पुट खरीद ली 36 रुपीज पे, और आपने क्या किया, जो उसकी कॉल थी 6700 की कॉल थी, जिसका रेट 25 रुपए आ रहा था, वो बेच दी। तो आपका नेट डेबिट सिर्फ तो 11 रुपए का डेबिट देके क्या है कि अगर सपोज क्रूड ऑयल यहां से गिरता चला गया, तो आपका लॉस प्रोटेक्टेड है, आपको पता है कि मुझे मिनिमम लॉस होगा। बट अगर सपोज क्रूड ऑयल बढ़ा, तो आपको बढ़ने का बेनिफिट प्लस, इफ यू आर लाइक इन टर्म्स ऑफ आप कोई भी चार्ट देख के या कोई भी लाइक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, इफ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड जहां पे आपको लगता है कि आप एक व्यू के साथ एक डायरेक्शनल प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। एज अ ट्रेडर इट गिव्स यू इमेंस अपॉर्चुनिटी where you can make good amount of money with minimum level of risk, and that is why many people they prefer a collar strategy, जहां पे उन्होंने फ्यूचर खरीदा, तो आपने क्या किया, WTI क्रूड का फ्यूचर लिया, पुट ऑप्शन को बाय किया और उसके कॉल को बेच दिया, तो उससे आपका रिस्क डेफिनेटली कम होगा और आपका जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड आपका बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर ट्रेडर हम लोग कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड ले पाए। Plus the best part is, let's say suppose if I just simply put up this chart, और आप देखोगे, आप देखिए अगर सपोज कोई थोड़ा सा डायरेक्शनल प्ले कर सकते हैं आप, और आप 1 घंटे के चार्ट पे भी लाइक इफ यू आर टेकिंग ट्रेड्स इवन ऑन एन आर्ली चार्ट, you will see that there is like in terms of there is very less noise, because crude oil is one commodity which has high beta. So when I say high beta, इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। Now एक अच्छे ट्रेडर के लिए दैट हाई बीटा इज एन अपॉर्चुनिटी, उनको पाने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। इट विल गिव यू लाइक इन टर्म्स ऑफ फैंटास्टिक लाइक पोजीशनिंग की, जहां पे आप अच्छी पोजीशन बना के काम कर सकते हैं। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सिंपल 1 आवर चार्ट, ये सेल सिग्नल आया, जब ये सेल सिग्नल आया 79.22 पे, तो देखिए मैं आपको कुछ मेजरमेंट कमा रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के ऊपर आप कितना सिंप्लिसिटी से विदाउट एनी नॉइस आप काम कर सकते थे। So in this sell signal, this would have given you, यहाँ पे buy आया है, so this would have given you nearly 8.7% का मूव। आप समझिए 8.5% का मूव एक शॉट में आ गया। इंटरेस्टिंगली दोबारा से जब हमने मूव देखा, तो फिर दोबारा जो अभी मूव करंट में चल रहा है ऑलरेडी, the running move that we have, that is also another like 8%। so आप सोचिए कि दोनों बार 8% का मूव खाया, अभी ऑलरेडी 8.19% का मूव चल रहा है। एंड एज अ ट्रेडर इट्स अ लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स डिलाइट, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप सपोज एक डायरेक्शन खाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्शन दे रहा है WTI क्रूड के अंदर, आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करके प्ले कर सकते हैं। एक और चीज जो जो नॉर्मली एक सवाल मैं देख रहा हूँ कि लाइक लोगों के उसमें आता है कि इफ वी वुड हैव सोल्ड हेयर,
सो अगर यहाँ पे सपोज WTI क्रूड के ऊपर काम करना होता तो आप कैसे काम करते हैं? तो ये जब जब ट्रेड आया, सो यू कैन मेक अ वेरी सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी. लेट मी शो यू लाइक हाउ यू कैन प्ले ऑन अ रिवर्स कॉलर. सो लेट्स से सपोज एज अ ट्रेडर यू वांटेड टू फॉर्म एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी. तो आप आराम से ये जो प्रोडक्ट है NSE का WTI क्रूड, इसके ऊपर जाके आप स्ट्रैटेजी बना सकते थे. हाउ दैट इज पॉसिबल, लेट मी जस्ट लाइक वेरी क्विकली शो इट टू यू. सो यहाँ पे क्या है कि आप प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रैटेजी बना, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि रिवर्स साइड में क्रूड ऑयल बेचते. जब सेल सिग्नल आया तो क्रूड ऑयल को आप सेल करते और एट दी मनी कॉल को आप बाय कर लेते हैं ना. अगर क्रूड ऑयल नीचे गिरता चला जाता है तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलता है. और साथ में क्या है कि आपने जो प्रीमियम खोया होता कॉल में, वो थोड़ा सा प्रीमियम का आपको नुकसान होता, लेकिन आप पूरी तरह से हेज थे. जब आपने स्ट्रैटेजी डाली तभी आपको पता था कि मेरा मैक्सिमम लॉस, दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन इनकर. सो you have good amount of flexibility. Now there is one query that I see in the chat box. What about in the sideways market? So you have to understand that if you are playing on a specific, like in terms of moves, so वो sideways तो market के अंदर move आएगा ही, but उस sideways के अंदर भी you will make money. So let's suppose if I show you ये जो product, जैसे गौरव सर ने बोला था, this product was launched in October last year. Now लेट मी जस्ट गो बैक एंड लेट मी शो यू ऑन दी चार्ट. ठीक है, आप सपोज इसके बीच में अक्टूबर से लेके अभी तक हम बात कर रहे हैं जून की. सो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक टेन्योर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सो मुदित, लाइक जो आपकी क्वेरी है, मैं ऐसे रिफाइन करके समझाता हूँ कि मैंने इस चार्ट को थोड़ा सा लाइक इन टर्म्स ऑफ जूम इन कर रहा हूँ. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस पे प्ले कर सकते हैं. नाउ आप देखिए, इवन उससे पहले जो मूव आया था, दैट्स अ डिसेंट लाइक मूव, जहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट मिला. उससे पहले सेल आया था, वहां से भी आपको नुकसान नहीं होता, बिकॉज अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काम करते तो आपको डाइल्यूशन का बेनिफिट मिल जाता. एंड देन द गुड पार्ट इज कि बड़े मूव्स आ रहे हैं. तो देखिए आप यहाँ पे, ये एक बड़ा मूव आया, फिर दोबारा से यहाँ पे एक बड़ा मूव आया. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल इन ऑल, व्हेन यू प्ले ऑन ऑन अ कमोडिटी विच इज हाई बीटा, सो कई बार साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत आपको क्या हो सकता है कि नुकसान, क्योंकि आपका डिफाइंड है, आपने तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लॉस कर रखा है. तो जब सपोज कभी साइडवेज मार्केट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, सो आप कितने पॉइंट्स को देंगे? मेरे मे बी लाइक 10-20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स. सो योर लॉस इज वेरी लेस, बट योर अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइक ensuring कि आप अगर सही स्ट्रैटेजी पे हैं, रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी पे हैं और आप उसको राइट करेंगे, सो योर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी विल बी मच हायर. सो आप डिफाइंड रिस्क के अंदर एक तरीके से ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिस्क जो है वो कम होगा, जो आपका रिवॉर्ड है वो काफी बेटर हो जाएगा. आई होप लाइक यू आर क्लियर विद द क्वेरी दैट यू हैड, मुदित. और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने रिस्क को कंपैरेटिवली काफी कम करके ट्रेड कर सकते हैं. राइट, आई होप लाइक दिस इज क्लियर टू यू. राइट, ओके. नाउ लेट्स से सपोज आपने दो सिंपल स्ट्रैटेजीज देखी. फिर ऐसे ही क्या होता है क्रूड ऑयल के अंदर, स्पेशली अभी एक्सपायरी है. ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स चाहते हैं कि हम मैक्सिमम प्रीमियम गार्नर कर जाएं. स्पेशली ऐसे अभी इवनिंग तक भी अगर आप देखेंगे ना, मूव नहीं आया. सो ट्रेडर्स क्या चाहते हैं, ट्रेडर्स दे वांट टू एंश्योर कि हमें ऑप्शंस का बेनिफिट मिल जाए. अब आप ऑप्शंस का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, मैं उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कि लाइक हम लोग नॉर्मल तरीके से लगाते हैं. काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली स्ट्रैटेजीज ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, और मैं इसके अंदर ना रेशियो भी यूज कर, मैं सिंपल स्ट्रैटेजी समझाता हूँ. उसके बाद लाइक कैसे आप NSE पे जाके इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, कर देता हूँ. सो दिस इज अ सिंपल आयरन कॉन्डोर, जो कि काफी फेमस है लाइक ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, या जितनी एल्गो चलती हैं आज की डेट में, काफी सारे लोग लाइक मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड स्ट्रैटेजीज डालते हैं. तो नॉर्मली इसमें लोग करते क्या है कि लाइक यू टेंड टू सेल, जो कि नियर बाय OTM है उनको आप सेल कर देते हैं, और दूर दूर की जो OTM है उनको खरीद लेते हैं. तो आप 6500, ठीक है, सो 6500 का क्रूड ऑयल है, आपने 6600 की कॉल सेल कर दी, आपने 6400 की पुट सेल कर दी, और दूर से उसके 200 पॉइंट दूर आपने क्या किया, हेजेस बाय कर ली. इससे क्या होगा कि आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड है, और आपका जो, आप सपोज मान लीजिए क्रूड ऑयल के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहने, पूछा भी था. सो अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा फायदा देगी. मैं अब आपको एक बार दोबारा से समझा, NSE की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ. सो ये हम वापसी NSE इंडिया की वेबसाइट पे आ गए. क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं कि लगभग 6500 था. अब देखिए कितना सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. 6400 का जो पुट है, ठीक है,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइक जो आपका 6500 का पुट है और 6600, तो 6400 का जो 6400 का पुट आपका ऑप्शन आ रहा है, दैट इज 17 रुपीज। ठीक है, सो आपने क्या किया, 17 रुपीज पे एक लॉट यहाँ पे सेल कर दिया। 6600 का कॉल ऑप्शन आप देख रहे हैं लगभग 60 रुपीज आ रहा है, ये आपने एक सेल कर दिया। कंबाइंड प्रीमियम, सो इफ यू सेल दिस 6400 पुट, that is 17 rupees 40 paisa, 6600 call, that is approximately 61 rupees 62 rupees. So if you sell both of them, you are getting a combined premium of approximately 78 rupees. So आपने क्या किया, 78 rupees का प्रीमियम एनकैश किया, बाय इसको सेल कर दिया। नाउ टू हेज योर सेल्फ यू हैव बॉट 6300 का आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया 10 रुपए में, और आपने साथ में 6700 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया अप्रोक्सीमेटली 24 रुपीज में। सो अगर सपोज क्रूड ऑयल में ज्यादा मूवमेंट नहीं आती और क्रूड ऑयल एक रेंज में रहता है, देन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। सो आज जब आप इस प्रोडक्ट पे ट्रेड करते हैं तो यू विल बी एबल टू हैव अ प्रीमियम बेनिफिट। एक और चीज, ये प्रीमियम बेनिफिट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, रीजन बीइंग बिकॉज देयर इज हार्डली लाइक, अभी हमें पता है कि जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी जो है वो हार्डली 2 दिन के, हमें पता है 2 दिन का टेन्योर रह गया एक्सपायरी का, तो वो उस पर आप एक तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली लाइक आपको चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी और आप काम कर पाएंगे इजीली, लाइक आप इसको कॉन्फ़िगर करके चीज कर पाएंगे। देन आई कैन सी लाइक विकास का यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है दैट लाइक कैन आई शो द इंडिकेटर वंस अगेन। यस आई कैन, मैं आपको दोबारा से लाइक एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे मैं चार्ट पे सेटअप कर रहा हूँ। सो कमिंग टू दिस क्वेरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, चार्ट के ऊपर अभी मैं फिलहाल सपोज मैं ये चार्ट पे गया, चार्ट पे मैंने ये इंडिकेटर हटा दिए। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है। यहाँ पे ऊपर ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन आती है इंडिकेटर की, मैं WTI क्रूड का चार्ट देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक QL पे इंडिकेटर लगाया। जब मैं इस इंडिकेटर को लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डाउन एंड अप एरो आ रहे हैं जिससे कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। नाउ यू कैन यूज एनीथिंग, मतलब यू कैन यूज RSI, आप स्टॉच यूज कर सकते हैं, आप लाइक मे बी समबडी वांट्स टू यूज लाइक एनी अदर इंडिकेटर, या फिर आप कोई भी पैटर्न कैंडल स्टिक पे भी काम करते हैं, या सिंपल कई लोग जैसे मैं इंडिकेटर में और भी, आपने कहा मैं सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, ये सिंपल मूविंग एवरेज लगाया मैंने। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज के अंदर ही मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने सिंपल ये जो एवरेज था इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ एंड लेट मी शो यू कि इसको 9 डेज का छोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको ओके किया, डन। अब देखिए एक बेसिक सा चीज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये सिग्नल आया था, आपने देखा कि ये प्राइस जो है ये इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, आप बाय कीजिए। ठीक है, और आपने क्या किया, इस बाय करने के साथ साथ यहाँ पे एक मूविंग एवरेज मैंने और डाल दिया विच इज फॉर अ लिटिल हायर टाइम फ्रेम, दैट इज फॉर 36 डेज। ठीक है, 36 आवरली कैंडल यूज कर रहा हूँ, 36 की मैंने एक कैंडल यहाँ पे और डाल दी। अब देखिए आप, मैं इसका थोड़ा सा अगेन आई जस्ट लाइक चेंज द कलर कॉम्बिनेशन, 1 second and let me just do a different color, done, okay now see अंडरस्टैंड कि जब भी आपका प्राइस ऊपर गया, सपोज ये 9 के ऊपर चला गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा सिग्नल है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मल्टीपल एग्जांपल्स जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। द मोमेंट दिस दिस क्रॉसेस अबव दिस, आपने क्या किया, बाय रखा। जब आपको दिख रहा है कि ये वाला क्रॉस ओवर, यहाँ पे ये जो आपकी 9 EMA थी, जब 9 EMA 36 को भी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब बुलिश सिग्नल है, पड़ जाए और आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करिए, जब तक क्रॉस ओवर नहीं आ रहा पूरे ट्रेंड को राइट करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे देखा कि आपने ट्रेड बनाया, उस ट्रेड को आप पूरे को एनकैश कर जाएंगे। सो डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। आप लाइक मे बी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्यू अल्फा पे काम कर रहा हूँ, या फिर कोई भी आप इंडिकेटर पे लाइक काम कर रहे हैं, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यस आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ कितना बढ़िया मूव खा रहे हैं, मोमेंटम खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, आई थिंक वो किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्रॉस ओवर आया, सेल का सिग्नल, अगर आप यहाँ पे सेल मिलता क्रूड ऑयल के ऊपर, 1 घंटे का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप बाय करते दोबारा से इस क्रॉस ओवर पे, यहाँ पे जब ये क्रॉस ओवर हुआ, जब 9 EMA 36 EMA को क्रॉस कर गई, तो तब भी आप बड़ा मूव आपको प्ले करने को मिल जाता। सो what I'm trying to say that even with simple indication you can play directional, you can play non-directional strategies on the crude oil। और सबसे बड़ी बात है NSE के इस प्रोडक्ट के अंदर जैसे आप देख रहे हैं the traction has been very good। सो अगर आप सपोज ट्रैक्शन देखेंगे, सो इस प्रोडक्ट के अंदर धीरे धीरे करके ट्रैक्शन बढ़ रहा है एंड दी वॉल्यूम्स हैव बीन वेरी गुड एंड क्वाइट सेटिस्फाइंग। तो इसीलिए लाइक काफी सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। एक और चीज, अभी जैसे एक्सपायरी नियर बाय है, तो आयरन बटरफ्लाई इज वन वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको लगता है ना आज शाम तक भी ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, या लेट्स से सपोज
अब वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, एट दी मनी, अभी 6500 क्रूड ऑयल खड़ा हुआ है, 6500 की कॉल पुट आपने सेल कर दी, और उसके अगेंस्ट में आपने 6600 की कॉल, और नीचे की तरफ आपने 6400 की पुट जो है बाय कर ली। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट एक रेंज में भी रहेगा तो भी आपको फायदा होगा, और बहुत ज्यादा कच्चे तेल में मूव नहीं आता। तो जैसे मुदित ने एक सवाल किया था कि लाइक व्हाट इफ इट स्टेज within the range, so even if it stays within the range it will give you good like in terms of profitability, एंड वहां पे आप कमा सकते हैं ना। व्हाट इफ अगर वो रेंज के बाहर चला जाता है, तो अभी हम लाइव प्रीमियम पे एक बार सो की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, देखिए 6500 का कंबाइंड प्रीमियम लगभग 124 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे 36 रुपीज। अगर हम दोनों को प्लस कर तो अभी कंबाइंड प्रीमियम मिलता है इस मार्केट के अंदर, दैट इज 160 रुपीज। सो 160 रुपीज का प्रीमियम आपको क्रेडिट हो रहा है, नीचे की तरफ आप 17 रुपीज पे कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ अगर आप अपने आप को हेज करते हैं, तो आप सपोज ये कॉल नहीं लेते, सिर्फ एक एक विंग छोड़ भी सकते हैं। तो बटरफ्लाई के अंदर आप क्या, यू कैन इवन स्किप अ विंग, सो हम बोलते हैं इसको ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। और आपने एक विंग को छोड़ के अगर सपोज ये वाली कॉल बाय करी, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 23 रुपीज की बाय हो रही है। सो 23 रुपीज एंड 17 रुपीज, योर डेबिट इज 40 रुपीज। आपको 160 रुपीज मिला था, तो 120 रुपीज का आपको क्रेडिट मिल गया। फायदा क्या है कि अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, आप देखेंगे द डाइल्यूशन विल गिव यू इमीडिएट इम्पैक्ट। और उससे आपको फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप इंस्टेंटली थोड़ी देर में भी, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे शाम, अभी ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं शाम को 6-7 बजे तक भी मूव नहीं आएगा, सो यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू हैव अ प्रीमियम बेनिफिट कमिंग टू योर साइड, एंड आपको वो प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो काफी अच्छे तरीके से मिल जाएगा, एंड आप काम कर पाएंगे उसके अंदर। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, एंड आई थिंक लाइक आपको और ज्यादा लाइक क्लैरिटी आएगी, चीज समझ में आएगी कैसे आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, या आप देख रहे हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ कैसे आप एनएससी के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड देन द बेस्ट इज, जब भी आप ये स्ट्रैटेजी डालते हैं, द मोमेंट आपने स्ट्रैटेजी डाली, सो यू हैव अ वेरी क्लियर व्यू दैट योर रिस्क इज डिफाइंड, यू आर नॉट टेकिंग एक्सेसिव रिस्क, you are taking a limited risk, defined risk from the moment you have like punched the strategy. So आपका रिस्क जो है वो डिफाइन हो गया, आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको पता है कि ये मेरा रिवॉर्ड आ सकता है स्ट्रैटेजी के अंदर, और डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजी में ही काम करने का फायदा है। प्लस जैसे लाइक कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, लाइक दे वांट टू गो विद अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज इनटू अ बाय साइड, या वो और लिमिटेड रिस्क में काम करना चाहते हैं। तो एक और स्ट्रैटेजी व्हिच आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू, दैट इज अ कॉल बैक स्प्रेड, सो अ सिंपल बुलिश स्ट्रैटेजी। आप क्या करिए, इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको लगता है ना कच्चा तेल, आप भाग जाने दीजिए, आपका रिस्क जो है ना, अगर गिर गया तो भी आपको लॉस जो है वो नहीं होगा, भाग गया तो भी आपको फायदा ही होगा। ठीक है, नाउ ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में काम करने के लिए बहुत बढ़िया है, स्पेशली लाइक ड्यूरिंग, अब सपोज नया कॉन्ट्रैक्ट लगेगा तो नए कॉन्ट्रैक्ट में भी डालने के लिए बहुत अच्छा है, जहां पे आपका डायरेक्शनल व्यू है, आप कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिवॉर्ड आप अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप ना इन दी मनी कॉल बेच दीजिए, सो you sell one in the money call and you buy 2 out of the money call. Now what will happen if you tend to do that, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल लाइव सिनेरियो के अंदर। सो सपोज आपने क्या किया, अभी क्रूड ऑयल 6500 है, आपने 6400 का कॉल आ रहा है, 200, देखिए 204 रुपए, 204 रुपए 90 पैसे, 204 रुपए 20 पैसे। नाउ यू डिसाइड टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉल, आपने क्या किया, ये कॉल को सेल कर दिया। अब आपने जब सेल किया तो आपको 200 रुपए का प्रीमियम मिला है, मतलब 6600 रुपीज तक आप सेफ गार्ड है, चिंता नहीं है कि क्या होगा। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक टू इंश्योर कि आपका आपका रिस्क ना बढ़े, आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी बनी रहे, तो आपने क्या किया, जो 6700 का कॉल है सपोज, वो आपने 2 लॉट, यहाँ पे 1 लॉट सेल किया था, 2 लॉट आपने बाय कर लिए लगभग 24 रुपीज के, तो आपका 48 रुपीज का आउटफ्लो हो गया। सो मोटा मोटा अगर आप देखोगे 160 रुपए का प्रीमियम आपको खाने को मिल गया। अगर क्रूड ऑयल गिरता चला गया, सपोज यहाँ से क्रूड ऑयल गिरा, सो 160 रुपीज पूरे के पूरे 160 रुपए आपको खाने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो आपने ऊपर प्रोटेक्शन ले रखी है, 200 रुपए तो आपने खाए हैं प्रीमियम के, अब ये जो कॉल है ना आपकी, ये कॉल बढ़ जाएगी और आपको ये फायदा दे जाएगी। सो जब आपको लगता है ना कि आपको डायरेक्शन ऊपर की तरफ जानी चाहिए और आपको वहां पे बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप डायरेक्शनल प्ले तो कर लिया, लेकिन आप श्योर नहीं है कि क्या वो डायरेक्शन में वैसे ही मूव करेगा कि नहीं करेगा। सो यू आर नॉट वेरी श्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ दैट विल हैपन। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने नीचे गया, सो इफ क्रूड ऑयल WTI क्रूड दैट गोज डाउन, यू विल स्टिल मेक मनी, इफ इट गोज अप यू विल मेक मनी। नाउ अगर वो बिल्कुल बीच में बंद हुआ
तो आपका रिस्क जो है डिफाइंड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क में आप काम कर रहे हैं, सो योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एंड एज अ ट्रेडर यू विल फाइंड कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा आएगा एंड यू विल बी एबल टू जनरेट गुड प्रॉफिट्स. सो दी होल आइडिया इज दी होल सिचुएशन इज कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को बेटर करते हैं, कैसे आप इन टर्म्स ऑफ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर तरीके से गार्नर कर सकते हैं. वन मोर थिंग, as I said, many people they tend to use a broken wing butterfly. तो कई बार आपका डायरेक्शनल व्यू होता है, यू डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ रिस्क, आप डिफाइन रिस्क में काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक इन दी मनी कॉल खरीदते हैं कई बार, और दो एट दी मनी कॉलों को आपने भी क्या किया, आपको लगा क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं स्टेबल रहना चाहिए या गिरना चाहिए, और अगर भागेगा भी तो भी मुझे रिस्क नहीं चाहिए. सो यू बाय वन इन दी मनी कॉल, 6400 का कॉल आपने खरीद लिया, 6500 का कॉल आपने दो बेच दिया, एक स्ट्राइक से स्किप करके आपने आउट ऑफ दी मनी कॉल बाय कर ली. मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप इस काम को भी. तो ये एनएससी की वेबसाइट पे आपने 6400 का जो कॉल था ना, इसको आपने क्या किया, बाय कर लिया 204 रुपए में, 6500 का दो बेच दिया, 123 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, इंटू दो कर दीजिए तो आपको 246 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, 246 रुपीज, 246 माइनस 204, सो यू गेट अ क्रेडिट मिलता है मोटा मोटा 44 रुपए का, 44 रुपीज. सो ये जो आपको 44 रुपीज का क्रेडिट मिला, इस 44 रुपीज के क्रेडिट के बदले में आपने एक ऑप्शन खरीद ली which is 6700 call, which is at 23 rupees. Now suppose if crude oil, it goes down, you make money. If it stays there, again you make money. So the best part is that you will be able to generate very good in terms of cash inflow. अगर वो नीचे जाएगा पैसा बना रहा है, ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ से आपको लगता है ये 6500 पे खड़ा रहा, तो ये जो कॉल थी आपकी 200 रुपए 204 रुपए की, ये एक्सपायर होगी 100 रुपए पे, ये वाली जीरो हो जाएंगी तो आपको पूरा क्रेडिट मिल गया. सो अगेन यू आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ नॉन डायरेक्शनल मूव. नाउ व्हाट इफ अगर क्रूड ऑयल गिर गया तब भी आपकी स्ट्रैटेजी फायदा देगी. सो देयर आर मेनी ट्रेडर्स, मेनी इन टर्म्स ऑफ पीपल, दोज हु आर एबल टू इंश्योर कि आपका जो एक तरीके से रिवॉर्ड है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाए, एंड एज अ ट्रेडर यू आर एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ आपको ये समझ में आता है, क्लैरिटी आती है कि यस, with minimum risk you can have maximum reward coming to your side. So with this depending upon एक trader का view क्या है, again I'm not here to give any recommendation or something, I'm just here to guide you कि कैसे आप इस product को use कर सकते हैं. So in no way whatever that I am discussing और या मैंने discuss किया है, that is not a कोई recommendation नहीं है, and it is it is just for the knowledge purpose that all of you are able to understand कि कैसे आप इन concepts को apply कर सकते हैं. So one good part with all these strategies is कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, जो कि आप इनकम स्ट्रैटेजीज चाहते हैं, वो इनकम स्ट्रैटेजीज आप इनसे जनरेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ट्रेड बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर चार्ट समथिंग, सो यू कैन यूज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. सो इन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव कॉल, कॉलर, वो सब डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में आ जाएगा. अगर आपको लगता है कि यू वांट टू प्ले सम वोलेटाइल स्ट्रैटेजी, सो यू कैन प्ले विद कॉल बैक स्प्रेड और पुट बैक स्प्रेड. सो विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज आप इस प्रोडक्ट को बेटर यूज कर पाएंगे और अपने मार्जिन को आफ्टर 330 आई थिंक बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन के अंदर डाल पाएंगे. नाउ आई थिंक it is nearly 5 and I think there are people who must be having some queries, and I was told that you should speak till 5 p.m. So any doubt, any queries or Q&A, I think we can do that. So anyone from Master Trust, if you see some more doubts or any queries, or participants if you want to ask the questions, I think I can take that. Anyone from Master Trust or host, if you can probably if we can take the queries of people, and I think there are multiple hands which are being raised. I request people if they can type it in the chat box, that will be great. And or if allowed, we can take the other queries also. Above, sir. Yes, sir. Yeah, anyone from the other side, Master Trust, or maybe if we can, because there are multiple hands which I can see that the people have raised and they have the query. Is there any specific questions that we can take related to the product side? Yeah, so and in the meanwhile, जो भी participants हैं, अगर आपके doubts हैं, so I request जब तक आप अपना type कर सकते हैं, you can put it in the chat box and I will be more than happy to help you out. So एक Q&A बना हुआ है, जैसे कई लोगों ने queries डाली हैं, you can even post the queries and we will help you answer that. Okay. So is it possible to provide a recording link? I think that is something which people from the Master Trust, they can answer. So you can probably contact them after the session, and I'm sure
they will be able to help you out. Vikas sir, thank you for your feedback. I think your queries are resolved. Okay, fair enough. Okay. I think more or less we have covered the maximum aspect in the limited time frame. So I sincerely thanking Varun sir for giving us time and provide the very useful insights, and also thanking Master Trust for providing us the platform to discuss about the product line and the opportunities related to the NSE derivative contracts. And a request, as it's a new product, I request all the participants to please take care and take appropriate suggestion and under the guidance of the broker to whom they are trading, as this is the program which is under the NSE's education initiative. So this is not as per the recommendation of any kind of trading view and any other things. So this is an NSE education initiative. I request all of you to please take care of it, and thanking all to joining us for the webinar. Thank you, Master Trust, and thank you, sir, for the session. Yeah, thank you so much, Vaibhav sir, and thank you so much, Gaurav sir, the Thank entire you, team of Varun. Thank you, Varun. Master Trust for like ensuring that this session goes well and people are able to benefit out of this new product which is there. Like, and I think being traded extensively, and people those who love trading commodities and taking benefit of margin, I'm sure they can utilize this beautiful opportunity which is there in the commodity market. So thank you so much everyone for joining in. Yes, I sir. hope, like, you had. Thanks to panelists for leading this session and taking up the queries and sharing your valuable inputs on the same. So thank you, Mr. Varun, Mr. Gaurav, and Mr. Weber for this. And thanks everyone for joining. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone.